ऑलराइट। सो कल तक हमने ऊपर तक देख लिया था गंजीफा कार्ड्स, ठीक है। जीआई टैग भी मिल चुका है। इसका जिक्र बाबरनामा में भी है, ठीक है। और 2008 में वैसे इसको जीआई टैग दिया गया था। ताश के पत्तों का गेम है बेसिकली, मेडिवल पीरियड का, ठीक है। मुग़ल कोर्ट्स में काफ़ी पॉपुलर था ये। एनीवेज मूविंग ऑन, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स करने जा रहे हैं आज से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी पेंटिंग्स। सो इन द colonial period a hybrid style of painting emerged that combined the elements of Rajput, Mughal and other Indian styles with the European elements. European elements. तो जब राजपूत, मुग़ल और यूरोपियन एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कंपनी पेंटिंग्स बनती हैं। These paintings evolved when the British company officers employed painters who had been trained in Indian styles, ठीक है। As simple as that. जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन पेंटर्स को एम्प्लॉय किया तो उन लोग ने जैसे पेंटिंग बनाई, दे फॉर्म द कंपनी पेंटिंग्स। हेंस दे मिक्सड देयर एम्प्लॉयर्स यूरोपियन टेस्ट्स विद देयर इंडियन ट्रेनिंग and were called as the company paintings. They were distinguished by the use of watercolor and technique by the appearance of linear perspective and shading. तो इनमें ख़ास बात ये थी कंपनी पेंटिंग्स में कि एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ वाटर कलर्स एंड लीनियर शेडिंग, लीनियर पर्सपेक्टिव एज वेल एज शेडिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी एंड थंजावुर, ठीक है। सारे ना भी याद रहें तो भी चलेगा, बट कोलकाता, दिल्ली, पटना, चेन्नई, कुछ 4-5 तो याद होने चाहिए, थंजावुर, ठीक है। मैरी इम्पे and Marquess Wellesley patronized large number of painters. Several painters were engaged in painting the exotic flora and fauna of India. The most famous of this school were Mazhar Ali Khan and Ghulam Ali Khan, ठीक है। तो एक मार्क्वेस वेलेस्ली थे जिन्होंने पैट्रोनाइज दिया था, और एक मैरी एम्पे। इन दोनों ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कंपनी पेंटिंग्स को काफ़ी पैट्रोनाइज दिया। और कौन दो पेंटर्स उभर के आए कंपनी पेंटर्स के रूप में? तो एक मज़हार अली खान और एक गुलाम अली खान। These genre of paintings were prevalent till the 20th century. Then we come to the bazaar paintings. This school was also influenced by the European encounter in India. They were different from the company paintings as that school mixed European techniques and themes with Indian ones. The bazaar school did not take any Indian influence but took the Roman and Greek influence. Right, this is the key difference from the company paintings. They made the painters to copy the Greek and Roman statues, ठीक है। तो ग्रीक एंड रोमन का इसमें डोमिनेंस था। दिस स्कूल वाज प्रेवलेंट इन बंगाल एंड बिहार रीजन। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेको रोमन हेरिटेज, पेंटिंग्स ऑन एवरीडे बाजार that showed Indian bazaars with European background. One of the most famous genres was depiction of Indian courtesans dancing before the British officials. ये भी एक बाजार पेंटिंग का दृश्य था। They also painted religious themes, but the figures of Indian gods and goddesses with more than 2 axes and elephant faces like that of Lord Ganesh were prohibited. ये एक फीचर, ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस बनाते थे, बट द फिगर्स ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस with more than 2 axes and elephant faces like that of Lord Ganesh were prohibited. तो इंडियन गॉड्स के पास 2 से ज़्यादा कुल्हाड़ी जैसा कोई दृश्य बनाना प्रोहिबिटेड था। सिमिलरली हाथी जैसे मुंह वाले लॉर्ड गणेश के दृश्य को बनाना प्रोहिबिटेड था। सो दैट वाज बाजार पेंटिंग। देन वी read about this person called Raja Ravi Verma, one of India's greatest painters, considered the originator of the school of modern painting. So the school was called modern because of heavy influence of Western techniques. He was unique as he brought together elements of South Indian painting with the Western techniques of color and style. So Ravan kidnapping Sita and killing Jatayu, ये एक दृश्य राजा रवि वर्मा का पेंटिंग में बहुत फेमस है। He belonged to the state of Kerala and is known as the father of modern Indian art. Some of his extremely famous works include Ladies in the Moonlight, Shakuntala, Damayanti and Swan, etc. He gained nationwide recognition for his paintings from the epic Ramayana, especially the one titled as Ravan kidnapping Sita and killing Jatayu. A film has been made on him named Rang Rasiya, ठीक है। Now फिर हम आते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये जो है इसमें सिंपल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये एक तरह से रिएक्शनरी अप्रोच था टू द एग्जिस्टिंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। एंड द आइडिया ऑफ बंगाल स्कूल केम अप विद द वर्क्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर इन द 20th सेंचुरी। अरेबियन नाइट सीरीज़ की पेंटिंग्स जो थी अवनींद्रनाथ टैगोर की, मेड अ मार्क ऑन द ग्लोबल स्केल एज इट वॉज पाथ ब्रेकिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल्स ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड ब्रॉट इन समथिंग न्यू. He tried to incorporate Swadeshi values in Indian art.
ये एक इनका की फीचर था। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक स्टाइल अमंग द आर्टिस्ट्स, ही इज़ नोन फॉर हिज पेंटिंग भारत माता एंड वेरियस मुगल थीम्ड पेंटिंग्स। ये बहुत ही इनकी एक फेमस है अवनींद्रनाथ टैगोर की, सॉरी नंदलाल बोस ने ये बनाया है। ब्लैक बैकग्राउंड में गांधी का दृश्य बनाया है डांडी मार्च को दृश्य दिखाते हुए। ठीक है। द अदर नोटेबल पेंटर ऑफ दिस स्कूल वॉज नंदलाल बोस, जो कि ये पेंटिंग बनाए हैं। तो वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच ऑफ द डांडी मार्च विच became iconic during 1930s. He was also entrusted with the task of illuminating the original document of the Constitution of India. तो ओरिजिनल जो वर्जन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी कुछ उन्होंने पेंटिंग वगैरह का काम किया है। ये भारत माता की पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये नंदलाल बोस के द्वारा है गांधी पेंटेड विद वाइट ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है। अनदर मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनको कौन भूल सकता है। ठीक है। His paintings were unique as they used dominant black lines that made the subject look prominent. तो dominant black lines वाली स्टाइल रविंद्रनाथ टैगोर की है। He made small sized paintings. Some art historians argue that his paintings can be linked to his writings. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये बड़ा यूनिक सा है क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। देखो, इंस्पिरेशन तो इसका भी यूरोपियन से आया था। यूरोपियन में एक क्यूबिस्ट मूवमेंट चली थी, उसी से इसका इंस्पिरेशन है। अंडर दिस स्टाइल द ऑब्जेक्ट्स वर ब्रोकन, एनालाइज्ड एंड देन रीअसेंबल्ड। ठीक है। अब तुम देखोगे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बट बहुत ध्यान देने के बाद तुम्हें ये पेंटिंग से पता चलेगा कि एक्चुअली आई थिंक देयर इज़ अ वुमन सिटिंग विद वन लेग ऑन टॉप ऑफ अ अदर लेग। ठीक है। तो इस प्रकार की पेंटिंग को ये क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। और ये दे ट्राइड अचीविंग द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लाइन एंड कलर एंड ऑब्जेक्ट्स वर ब्रोकन, एनालाइज्ड एंड रीअसेंबल्ड। ठीक है। तो ऐसा करते हैं क्यूबिस्ट। तो इसमें कौन एक्सपोनेंट थे? एम एफ हुसैन इन द पेंटिंग्स दैट यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉनोटेशंस। ही यूज्ड द मोटिव ऑफ अ हॉर्स फ्रीक्वेंटली एज इट वॉज बेस्ट टू डिपिक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ मोशन। मोटिव ऑफ अ हॉर्स काफ़ी बार दर्शाए थे ये अपने क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। और इसके बाद फिर एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनता है आफ्टर 1947। अनदर ग्रुप ऑफ पेंटर्स grabbed the attention of the world by their progressive and bold themes. They amalgamated these themes with softer and more abstract themes. This group was formed by 6 founding members. तो इसमें FN सऊज़ा थे, SH रज़ा, MF हुसैन भी थे इसमें, KH आरा, HA गाडे, SK बकरे। ठीक है। तो ये लोग अपना प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप बनाए थे 1947 के उपरांत। अब इसके बाद कुछ फोक पेंटिंग्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जैसे मधुबानी पेंटिंग्स, ये मिथिला भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये द पेंटिंग्स हैव अ कॉमन थीम एंड आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम रिलीजियस मोटिव्स। दर्शाया जाता है ज़्यादातर रिलीजियस थीम्स के बेसिस पे हिंदुइज्म में, इंक्लूडिंग कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी एंड शिवा। द फिगर्स इन द पेंटिंग्स आर सिम्बॉलिक। फॉर एग्जाम्पल फिश डिपिक्ट्स गुड लक एंड फर्टिलिटी। ठीक है। तो ये है मधुबानी पेंटिंग। इसमें मछली का भी दिखाया जाता है जो कि गुड लक को दर्शाता है। द पेंटिंग्स आर ऑल्सो मेड डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक बर्थ, marriage and festivals. Flowers, trees, animals, etc. are used to fill any gaps in the painting. Traditionally, these were painted on the walls using rice paste and vegetable colors on a base of cow dung and mud. With time, the base changed to handmade paper, cloths and canvas. Since there was no shading, the paintings are two-dimensional. Some of the common features of these paintings include double line border. कहीं भी देखोगे तुम्हें डबल लाइन बॉर्डर मिलेगा। ठीक है। The origin of Madhubani paintings is believed to be during the period of Ramayana, when the king of Mithila told people of his kingdom to paint walls and floors of their houses on the marriage of Sita and Ram. Mostly women have passed on the skill of Madhubani painting from generations to generations. In 1970, this art got recognition when the President of India honored Jagdamba Devi. Apart from her, other famous painters associated with this include Bahua Devi, Bharti Dayal, Ganga Devi, and Mahasundari Devi, and Sita Devi. ठीक है। इसको GI टैग भी दिया जा चुका है। तो कुछ नाम है जैसे जगदम्बा देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी और बगुआ देवी। ये सब मधुबानी के हैं। इसमें ध्यान रखना कि ट्रेडिशनली ये राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स के द्वारा बनाया जाता था ऑन द बेस ऑफ अ काउ डंग एंड मड। बाद में ये पेपर पे बनाया जाने लगा। देन टिकुली आर्ट क्या है? अ यूनिक आर्ट फ्रॉम बिहार। द वर्ड टिकुली इज़ अ लोकल टर्म for bindi which is worn by women between their eyebrows. उसी को तिकुली बोलते हैं।
बिहारी में. Under this art, painting is done on the hardboard and then it is cut in various shapes. Thereafter, 4 to 5 enamel coats is applied on it, thereby giving it a polished surface. Madhubani motifs are used in these Tikuli paintings as well. तो तिकुली आर्ट बता दिए कि इसमें बिहार का है वैसे ये, ठीक है. और तिकुली का मतलब क्या होता है, बिंदी. और एक पेंट बना देते हैं हार्डबोर्ड पे, फिर उसको 3-4 टुकड़ों में वेरियस शेप्स में काट देते हैं और फिर उसमें एनेमल लगा देते हैं, ठीक है. फिर पट्टाचित्र पेंटिंग ये उड़ीसा का है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें. द पेंटिंग्स शो अ मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट्स विद बायस टुवर्ड्स लैटर. इसमें पट्टा मतलब होता है कैनवस एंड चित्र मतलब होता है पिक्चर. तो कैनवस यूजुअली क्लॉथ का होता है. और नो पेंसिल और चारकोल इज़ यूज, रादर ब्रश इज़ यूज टू ड्रॉ द आउटलाइंस. पट्टाचित्र में पेंसिल का या कोई पॉइंटेड पेन का इस्तेमाल नहीं होता, चारकोल का भी नहीं होता, ब्रश का इस्तेमाल से पेंटिंग किया जाता है इन रेड और येलो आफ्टर विच द कलर्स आर फिल्ड, ठीक है. नाउ बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है. पट्टाचित्र पेंटिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है. और ये देख लो, द थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट, समटाइम्स फ्रॉम शक्ति एंड शैवा कल्ट्स ऑल्सो. रघुराजपुर इन उड़ीसा इज़ नोन फॉर दिस आर्ट फॉर्म. इनका एक नाम याद रखो, रघुराजपुर फ्रॉम उड़ीसा इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ पट्टाचित्र. एंड the Pattachitra painting depict images that are similar to the old murals of the state, especially the ones in Puri and Konark. Pattachitra on palm leaf is known as Tal Pattachitra. ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है. अगर उसी को तुम पाम लीफ पे करोगे तो तल पट्टाचित्र बोलते हैं फिर उसको. फिर ये पटुआ आर्ट क्या है, ये बंगाल का है. MCQ में बस इतना ही पूछेंगे. और ये इट स्टार्टेड आउट एज अ विलेज ट्रेडिशन बाय पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्यास और ऑस्पिशियस स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. These paintings are done on pats or scrolls, and for generations the scroll painters or patuas have been going to different villages to sing their stories. Most patuas are Muslims. Acha. Traditionally these were painted on cloth and told religious stories. Today they are painted with poster paints on sheets of paper sewn together, usually to comment on political and social issues. These patuas mostly come from Medinipur region, Murshidabad, north and south 24 Parganas of Birbhum districts. तो ठीक है, पटुआ समझ गए. स्टार्टिंग में तुम्हारा stories about Hindu gods and goddesses. Despite they themselves being Muslims, the depiction was of the auspicious stories of the Hindu gods and goddesses. पटुआ आर्ट, जिसको हम मंगल काव्यास भी बोलते हैं, ये बंगाल में है. बाद में ये पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के कमेंट के हिसाब से बनाया जाने लगा. मेदिनीपुर रीजन और मुर्शिदाबाद से ज़्यादातर पटुआस बिलोंग करते थे. फिर पैतकर पेंटिंग क्या था, ये झारखंड का है पैतकर, और ये ट्राइबल पीपल बनाते हैं. इसको स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं. कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशिएंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन द कंट्री, दिस ओल्ड फॉर्म ऑफ पेंटिंग हैज़ कल्चरल एसोसिएशन विद माँ मनसा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉडेस इन ट्राइबल हाउस होल्ड. ठीक है, इतना ही पूछेंगे. सो दीज पेंटिंग्स आर लिंक्ड टू द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स इंक्लूडिंग गिविंग आर्म्स एंड होल्डिंग यजनास. द कॉमन थीम ऑफ पैटकर पेंटिंग इज़ व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ. ऑल्दो एन एंशिएंट आर्ट it is on the verge of extinction given the rate of its decline. ठीक है. तो ये पैटकर पेंटिंग भी झारखंड का हो गया. माँ मनसा देवी इसमें पॉपुलर गॉडेस हैं, उन्हीं को दर्शाया जाता है. ठीक है. और द कॉमन थीम इसमें यही है कि लाइफ आफ्टर डेथ, क्या होता है आफ्टर डेथ. फिर आते हैं कलमकारी पेंटिंग. ये तुम्हारा शार्प पॉइंटेड बैम्बू इज़ यूज्ड एज अ पेन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कलर्स एंड द बेस इज़ कॉटन फैब्रिक while the colors used are vegetable dyes. ठीक है, तो ये कलमकारी हो गया. The main centers for कलमकारी are Sri Kalahasti and Machilipatnam in the state of Andhra Pradesh. Sri Kalahasti and Machilipatnam in Andhra Pradesh, and the images are drawn freehand and comes from Hindu mythology. Kalamkari painting had its existence even during the Vijayanagar Empire, that is correct, and it has received the GI tag. फिर वारली पेंटिंग ये गुजरात और महाराष्ट्र में है. ये 2,500 से 3,000 BCE, काफ़ी पुराना है वारली पेंटिंग. ठीक है. एंड द नेम ऑफ द पेंटिंग कम्स फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन कैरिंग द पेंटिंग ट्रेडिशन दैट गोज बैक टू 2500 BCE. दीज पेंटिंग्स हैव क्लोज रिजेम्बलेंस टू द मुरल पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो ये है वारली पेंटिंग. और रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैव अ सेंट्रल मोटिव ऑफ चौखट और चौक विच इज सराउंडेड बाय सीन्स पोर्ट्रेइंग फिश हंटिंग, फार्मिंग, डांसेस. देखो ना, ये बीच में एक बना दिया चौखट, अब उसके चारों ओर तुम्हारा डांसिंग चल रहा है. ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ भी चल रहा है. तो यहाँ पे एक सेंट्रल
मोटिव ऑफ अ चौखट बनाते हैं बीच में, सेंट्रल मोटिव ऑफ अ चौखट, एंड विच इज़ सराउंडेड बाय सीन्स ऑफ पोर्ट्रेइंग फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, डांसेस। ठीक है। अमंग द गॉडेस पाला घाट और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी इज ड्रॉन, एंड अमंग द मेल गॉड्स दोज स्पिरिट्स दैट हैव टेकन ह्यूमन फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड। तो पाला घाट एंड अमंग मैन those spirits that have taken human form are represented in the Warli paintings, very much similar to the Bhimbetka। ठीक है। तो traditionally it was done on walls using basic graphic vocabulary including a triangle, circle and a square to represent human or animal। ठीक है। अब कैसे ये intricate चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद है ठंगका। ठंगका पेंटिंग क्या है? ये प्रेजेंटली सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख यहाँ पे ये है, एज वेल एज अरुणाचल में भी है ये। तो as a medium of reference that evoked the highest ideals of Buddhism। तो इसमें of course Buddhist cult देखने को मिलेगा। और ठंकास are painted on a base of cotton canvas, white background with paints made from natural vegetable dyes or mineral dyes। The colors used in the paintings have their own significance. For example, red stands for intensity or passion, be it love or hatred. Golden is for life and birth. White is for serenity, and black depicts anger. Green represents consciousness, and yellow shows compassion। Once the painting is done, it is often framed in colorful silk brocade। तो दिस इज़ ठंगका पेंटिंग। ठीक है, ये ठंगका पेंटिंग है। इसके बाद मंजूषा पेंटिंग आते हैं। ये बिहार के भागलपुर इलाके का है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट, वेयर अंग रिफर्स टू द महाजनपद, जो हम लोग पढ़े थे। तो ये मंजूषा को अंगिका आर्ट भी बोलते हैं। सिंस स्नेक मोटिव्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेक पेंटिंग। दीज पेंटिंग्स आर जनरली एक्सिक्यूटेड इन बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। जूट के बॉक्सेस पे ये बनाई जाती है, और हमेशा हर पेंटिंग में स्नेक तो दिखाया ही जाता है, इसीलिए इसको अंगिका आर्ट कह लो या फिर स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं। ये भागलपुर रीजन ऑफ बिहार से बिलोंग करती है, जो कि महाजनपद पीरियड में अंगिका नाम के जनपद में था। फिर एक होता है फड पेंटिंग, ये राजस्थान का होता है। ठीक है, कितना है भाई, हो ही गया, चलो। तो ये फड पेंटिंग हम देख लिए राजस्थान का है, और इसमें लोकल डेटीज़ दिखाए जाते हैं, पाबूजी एंड देवनारायण, पेंटेड विद वेजिटेबल कलर्स ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड फड। तो इसमें जो कैनवस होता है दैट इज़ अ क्लॉथ कॉल्ड फड, और ये बहुत लंबी होती है, 15 से 30 फीट लंबी पेंटिंग होती है। ठीक है। द सब्जेक्ट्स हैव लार्ज आइज एंड राउंड फेसेस, दे आर ऑफ पॉम्पस एंड जॉयफुल नैरेटिव, एंड सीन्स ऑफ प्रोसेशंस आर कॉमन। फिर चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग्स, ये तुम्हारा तेलंगाना का है। इट इज़ अ टाइप ऑफ नक्काशी आर्ट, एंड the scrolls are depicted as a continuous story like comics or ballad by the Balladier community। Balladier community होती है कोई तेलंगाना में, वो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग्स बनाती है, सॉर्ट ऑफ नक्काशी जैसे सिमिलर है ये। एंड दे आर ऑफन ह्यूज इन साइज, गोइंग अप टू 45 फीट इन हाइट। तो एक तो चेरियल तेलंगाना का नक्काशी बैलाडियर कम्युनिटी 45 फीट, काफ़ी बड़ा है ये, और इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है 2007 में। उसी तरह से इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे स्नेक वाला, नहीं स्नेक नहीं, वो तो मंजूषा पेंटिंग अंगिका भागलपुर, एक्चुअली फड पेंटिंग ऑफ राजस्थान, वो काफ़ी लंबे लंबे मतलब 15 से 30 फीट लंबी पेंटिंग थी, और उसमें जो फड था दैट वाज बेसिकली द कॉटन कैनवस क्लॉथ। ठीक है। पाबूजी और देवनारायण लोकल डेटीज़ को दर्शाया गया है इसमें, राइट। फिर तेलंगाना में चेरियल आर्ट बता दिया मैंने, बैलाडियर कम्युनिटी के द्वारा, और ये भी काफ़ी बड़ी होती है, 45 फीट इन हाइट। इसको जीआई टैग 2007 में मिला। लास्टली पिथौरा पेंटिंग्स है। अब ये देखो, इसको वहाँ मत लगा देना, पिथौरागढ़ नेपाल में। ये पिथौरा पेंटिंग्स तुम्हारा गुजरात एंड एमपी बॉर्डर पे पड़ता है, एंड इज सेट टू सर्व रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस। दे आर पेंटेड इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सिंपल, ठीक है। दे आर ड्रॉन ऑन स्पेशल फैमिली ओकेजन्स एज अ रिचुअल। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स आर कॉमन, स्पेशली हॉर्सेस, घोड़े बनाते हैं इसमें, ठीक है। Depiction of animals, especially horses, as well as they are painted in the walls of the houses to bring peace and prosperity। ठीक है। So the paintings are done by some tribal communities of Gujarat and Madhya Pradesh। The paintings are done by some tribal communities of Gujarat and Madhya Pradesh। तो ये हो गया पिथौरा पेंटिंग्स, ठीक है। फिर एक लास्ट में ये सौरा पेंटिंग्स है। ये उड़ीसा का है। ये सौरा ट्राइब होती है ना उड़ीसा में, वही लोग बनाते हैं। ये वॉल मुरल पेंटिंग है, रिचुअलिस्टिक एंड वेरी सिमिलर टू वार्ली पेंटिंग्स, मतलब जैसा भीमबेटका में स्टिक लाइक फिगर्स, बीच में चौखट, ठीक है। द सौरा वॉल पेंटिंग्स आर जनरली डेडिकेटेड टू इडिटल। इडिटल कौन है भैया? द मेन डेटी ऑफ द सौराज। इडिटल को ये डेडिकेटेड है सौरा पेंटिंग्स, सिमिलर टू वार्ली पेंटिंग्स विच आर लाइक वॉल मुरल पेंटिंग्स विच आर लाइक भीमबेटका केव पेंटिंग्स, ठीक है। द पेंटिंग्स इज डन मोस्टली इन वाइट
वाइल द बैकड्रॉप ऑफ पेंटिंग इज़ रेड और येलो। तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। द ह्यूमन शेप्स आर ज्योमेट्रिकल एंड स्टिक लाइक, तो ये हो गया सौरा में। द डिज़ाइंस हैव गेंड फैशन इन रिसेंट टाइम्स विद लॉट्स ऑफ टी शर्ट्स, फीमेल क्लॉथिंग एक्सेट्रा फीचरिंग द सौरा स्टाइल डिज़ाइंस, ठीक है। ये हो गया ख़त्म, ठीक है। बानी थानी कहाँ का है? शायद जयपुर का है, आमेर जयपुर। देखना ज़रा, 1 का बी है क्या? आंसर कहाँ है? आंसर 1 का बी है, सही है। चलो और देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिलिमिनरी। इसमें षडंग ऑफ इंडियन पेंटिंग्स में कौन से? तो 1 और 2 आता है बस। ये तो तुम्हारा वो है जो क्या बोलते हैं, सौका पिताक, दिगाला पिताक, यामा पिताक, ये तो कुछ अन्य स्टाइल है। मतलब ये तुम्हारा मुद्र राक्षस में जिक्र किया गया था स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। वेर एज रूप भेद एंड लवन्या योजनम, ये तो तुम्हारे षडंगाज ऑफ पेंटिंग्स एज मैंशन बाय वत्स्यायन था, ठीक है। तो फर्स्ट का बी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। देखना ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट का, अरे प्रैक्टिस में भाई यहाँ पे फर्स्ट का आंसर नहीं दिया है। अरे यार, फर्स्ट का बी है। चलो तो इसके फर्स्ट का क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बानी थानी, ये भी तो तुमने फर्स्ट का बी ही बोला था ना। आंसर कहाँ है? आंसर ये किसके दिया है भाई? प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के आंसर दिया ही नहीं है। चलो छोड़ो, और 1-2 देख लेते हैं। और ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Bhimbetka Rock Shelter was declared as UNESCO Heritage Site in 2003. Correct है। It has rock engravings of Hindu gods and goddesses. Hindu gods and goddesses कहाँ है भाई इसमें? ये गलत है। Only one is correct. सेकंड का ये है क्या? हाँ चलो सही है, सेकंड का दिख नहीं रहा है क्या? ये सेकंड का है। फिर ये क्या है? अजंता के पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हाँ सही है। एंड रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश इज़ अ फेमस पेंटिंग देयर। नहीं, ये तो भाई उधर है। ये तुम्हारा राष्ट्रकूट में, कर्नाटका में शायद ये वाला दृश्य है। एलोरा में है ये, अजंता में नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ अबव करेक्ट? तो ओनली वन है भाई, ये 3 का ए है ना। 3 का ये क्या दिखा रहा है? 3D कैसे है यार? डी क्या है वैसे? नाइदर 1 और नॉर 2। पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अजंता में क्या है भाई? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ही तो है ना। तो ये गलत क्यों दिखा रहा है? थर्ड का आंसर देखो, रीज़न नहीं दिया है क्या यार। अब देखो ये 4th सीता नेवसल केव पेंटिंग है, हैं भाई? इसका आंसर तो बता दो सही। ये है बी, तमिलनाडु जैनिज्म। 4th का बी। चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब चलते हैं।